Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. I am Faisal and today I am presenting a new topic, that is permanent maxillary canines. The human permanent canines, or you can say the cuspids, in each arch have a similar appearance and function. They are often called the cornerstone of the mouth, since they are intermediary between the incisors and posterior teeth in function, form and arch position. So, in function, the canine's role in mastication is mainly tearing, which is intermediate between the incising of the anterior teeth, and grinding function of the posterior teeth. They also contributes greatly to the cosmetic and facial support function and play a part in phonetics as well. In form, they have the same general wedge shape as the incisors when viewed from the proximal aspects. However, when viewed from the facial aspects, they look like premolars. They exhibit biting edge, cingula and marginal ridges which are similar to those of the other anterior teeth. In arch position, they are the third tooth from the midline in each quadrant. This location is important to the individual appearance, since the canine play a major role in the support of facial muscles. The canine exhibits the greatest combined crown plus root length in each arch, and their root is very firmly anchored in the alveolar bone. The thick facial plate of bone overlying the canine root is termed as the canine eminence. Because of the bony support and the length of the root, the canine are usually the most steadfast teeth in the mouth. Permanent maxillary canines are two in numbers. The permanent maxillary canine replaces the deciduous maxillary canines and is located third from the midline in each maxillary quadrant. The permanent maxillary canines shares a mesial contact with the maxillary lateral incisors and distal contact with the maxillary first premolar on the distal side. Tooth numbering. Universal numbering system, they have 6 and 11. In Palmer notation method, they have 3, 3, while in FDI system they have 13 and 23 number. General form and function. The general crown form is pentagonal when viewed from the labial or lingual aspect and triangular when viewed from the proximal aspect. अगर टूथ को हम लेबियल और लिंगुअल एस्पेक्ट से व्यू कर ले तो ये हमारे पास पेंटागोनल शेप है. जैसे कि अदर एंटीरियर टीथ हमारे पास मोस्टली ट्रेपेजाइडल शेप के थे, बट दिस टूथ विल शो अ पेंटागोनल शेप. ये इसलिए क्योंकि हम उसको कस्पिड टूथ कहते हैं, और उसी कस्पिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास एक कस्प होता है. तो ड्यू टू दिस कस्प टिप ये हमारे पास पेंटागोनल शेप आता है. तो नॉर्मली जो अदर एंटीरियर टीथ हैं एक्सेप्ट कैनाइंस हमारे पास ट्रेपेजाइडल शेप के होते हैं, बट दिस टूथ आर द कैनाइन विल बी pentagonal shape. And triangular when viewed from the proximal aspect, same like proximal aspect से means कि mesial and distal aspect से, तो ये same other anterior teeth like ये triangular shape बनेगी क्योंकि same वही wedge होगा और एक triangle बनता है. बट अगर हम उसको labial and lingual aspect से view करेंगे तो ये हमारे पास pentagonal shape का होता है. The crown is bulky in comparison to the incisor, especially labiolingually, which gives it the appearance of strength. Labiolingually ये क्रोन हमारे पास बल्कियर होता है, ये वाइड होता है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और इसकी इस बल्कियर की वजह से ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. द कैनाइन फंक्शन इन mastication is mainly tearing and piercing, and they also function in aesthetic and speech, as I discussed in the introduction. Developmental table. इनिशिएशन ऑफ कैल्सिफिकेशन 4 to 5 मंथ में होती है. इसके अलावा कंप्लीशन ऑफ इनेमल 6 to 7 ईयर्स, 11 to 12 ईयर ऑफ एज में इसकी एरप्शन होती है, एंड रूट कंप्लीशन 13 to 15 ईयर्स में होती है. अब इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं. सो द लेबियल एस्पेक्ट ऑफ एक्सिलरी कैनाइन इज
इसका जो मीजल आउटलाइन है, द मीजल आउटलाइन इज usually convex from the mesial contact area to the cervical line with a rounded mesioincisal angle. mesial outline को देख ले, labial aspect का जो mesial outline है ये convex है from the contact area से लेकर ये बिल्कुल लास्ट cervical third तक ये convex है, और इसका जो mesioincisal angle है ये rounded है, ये राउंडेड है, आप एक एरो के साथ देख रहे हैं ये राउंडेड है। इसका जो हाइट ऑफ कंटूर बनेगा तो डेफिनेटली हाइट ऑफ कंटूर हमारे पास इंसाइजल थर्ड में बनेगा, और इंसाइजल थर्ड में कहाँ पर बनेगा, एट द जंक्शन ऑफ इंसाइजल एंड मिडिल थर्ड, जहाँ पर जंक्शन है इंसाइजल एंड मिडिल थर्ड का वहाँ पर कॉन्टैक्ट एरिया डेवलप होता है और बनता है। अब देखिए एक चीज़ जो कॉन्टैक्ट एरिया के रिलेटेड मैं आपको बता दूं, क्योंकि फर्स्ट इंट्रो चैप्टर्स में यह हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही हम एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाएंगे तो कॉन्टैक्ट एरिया एपिकली रिड्यूस होगा या एपिकली लोकेटेड होगा। मैक्सिलरी इंसाइजर्स, सेंट्रल इंसाइजर से लेटरल इंसाइजर तक वहाँ पर सेम था, लेटरल इंसाइजर से फिर पोस्टीरियर टीथ की तरफ जब जाएंगे हम तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा। तो मैक्सिलरी इंसाइजर में बिल्कुल इंसाइजल थर्ड में था, और यहाँ पर जो केनाइंस में है उसका कॉन्टैक्ट एरिया डेवलप होता है जंक्शन ऑफ इंसाइजल एंड मिडिल थर्ड। डिस्टल आउटलाइन, द डिस्टल मार्जिन इज शॉर्टर देन द मीजल मार्जिन and is usually concave between the distal contact area and the cervical line. Distal margin shorter है and ये concave है, little bit slightly concavity show करती है। अगर हम उसको डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया से लेकर सर्वाइकल लाइन तक के दरमियान उसको वीव कर ले तो ये लिटिल बिट स्लाइडली कनकेविटी शो कर रही है। अदरवाइज जो मीजल आउटलाइन था तो मीजल आउटलाइन थ्रू आउट सर्वाइकल लाइन तक ये कन्वेक्स था। द हाइट ऑफ कंटूर एट द कॉन्टैक्ट एरिया इन द मिडल थर्ड। अब देखिए हमने कहा कि अब जब जैसे एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाएंगे तो कॉन्टैक्ट एरिया एपिकली लोकेटेड होगा। अब जो मीजल आउटलाइन पे था वो एट द जंक्शन बिटवीन द इंसाइजल थर्ड एंड द मिडल थर्ड। अब डिस्टल कॉन्टैक्ट पे बिल्कुल डायरेक्टली ये मिडल थर्ड तक ये कॉन्टैक्ट एरिया आ गया है। तो जैसे ही हम एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाएंगे तो कॉन्टैक्ट एरिया रिड्यूस होगा। इंसाइजल मार्जिन, द इंसाइजल मार्जिन इज डिवाइड इनटू two components by the tip of the cusp and they are termed as mesioincisal and distoincisal slope। देखिए ये distal outline है, ये distal outline shorter है इट्स compared to the mesial outline, और इसका जो distoincisal angle है ये more rounded है। अब हम incisal outline की बात कर ले तो incisal outline को डिवाइड किया गया है by tip of cusp in two portion, mesioincisal slope this one and distoincisal slope। Lingual aspect, mesial, distal and incisal outline are similar to those of the labial aspect of maxillary canines। Cervical outline, the cervical line curves asymmetrically toward the apex with a slight offset to the distal। जो cervical line है it is curved toward the apex, क्योंकि लेबियल एंड लिंगुअल एस्पेक्ट पे ऑलवेज जो एंटीरियर टीथ होती हैं इसका ये कर्व होता है टुवर्ड द एपिक्स, और जो प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट होता है ये कर्व्ड होता है टुवर्ड द इंसाइजल और इंसाइजल एज। लिंगुअल एस्पेक्ट, द सिंगुलम इज बल्की एंड नॉर्मली स्मूथ, it shows greater development than the cingulum of the maxillary central incisor। There is normally a lingual ridge extending incisogingivally in the center of this area with shallow mesiolingual and distolingual fossa between it and the prominent marginal ridges। अब देखिए यहाँ पर जो सिंगुलम है ये बल्कियर है एंड मोर प्रोमिनेंट है एज कम्पेयर टू द अदर एंटीरियर टीथ, आप देख रहे हैं। एंड यहाँ पर एक चीज की एडिशन है कि लिंगुअल रिजेस है, यहाँ पर लिंगुअल रिजेस है जो कि इंसाइजोजिंजिवली ये एक्सटेंड है ये रिजेस। अब इसी रिजेस की वजह से यहाँ पर छोटे छोटे से हम फोसास बने हुए हैं, शैलो मीजोलिंगुअल एंड डिस्टोलिंगुअल फोसा। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं
कि यहाँ पर मीस्टोलिंगुअल एंड मीजोलिंगुअल फोसास डेवलप हो गए हैं। इधर भी आपको ये शैलो फोसास नजर आ रहे हैं विद एरो के साथ। ये हमारे पास वही लिंगुअल रिज है जो कि इंसाइजो जिंजिवली या इंसाइजो सर्वाइकली ये एक्सटेंड हो गया है। ये वही सेम सिंगुलम है एंड ड्यू टू दिस वन यहाँ पर दो फोसेस बने हुए हैं, मीजोलिंगुअल फोसा एंड डिस्टोलिंगुअल फोसा। एंड इसका जो मार्जिनल रिजेस है मोर प्रोमिनेंट है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि यहाँ पर जो मार्जिनल रिजेस है, मीजल मार्जिनल रिज एंड डिस्टल मार्जिनल रिज, ये बिल्कुल हमारे पास प्रोमिनेंट है। अगर हम इस डायग्राम को देख ले तो इसमें हमारे पास ये डिस्टल आउटलाइन है, ये मीजल आउटलाइन है। ये मीजल आउटलाइन इसलिए कि इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, ये शॉर्टर है इसलिए डिस्टल आउटलाइन है। मीजल एस्पेक्ट, मीजल एस्पेक्ट का जो लेबियल आउटलाइन है, द लेबियल मार्जिन इज कन्वेक्स इंसाइजो सर्वाइकली विद द क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर इन द सर्वाइकल थर्ड। लेबियल आउटलाइन है ऑफ द मीजल एस्पेक्ट, ये कन्वेक्स है थ्रूआउट हमारे पास। उसका जो क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर बनेगा वो डेफिनेटली सर्वाइकल थर्ड में ही बनेगा, जो कि प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट में मोस्टली हमारे पास सर्वाइकल थर्ड में ही बनता है। यहाँ पर भी सेम सर्वाइकल थर्ड में क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर बनता है एंड ये हमारे पास थ्रू आउट कन्वेक्स है। और ये कन्वेक्सिटी यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा होती है देन अदर एंटीरियर टीथ फॉर द सेम आउटलाइन। लिंगुअल आउटलाइन, the lingual outline is concave in the incisal half and convex in the cingulum area. Lingual outline of the mesial aspect, ये cervical third में convex होता है and from the cervical third to the incisal third ये concave होता है। तो आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर सिंगुलम प्रेजेंट होता है। इस ग्रेटर सिंगुलम की वजह से यहाँ पर कन्वेक्सिटी होती है, बाकी यहाँ पर जो फोसा है लिंगुअल उसी फोसस की वजह से ये कनकेव होता है। एंड द हाइट ऑफ कंटूर इज डेफिनेटली इन द सर्वाइकल थर्ड ड्यू टू द ग्रेटर सिंगुलम। सर्वाइकल आउटलाइन, द सर्वाइकल लाइन इज कर्व्ड इवनली टुवर्ड द इंसाइजल विद द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट कर्वेचर डायरेक्टली बीनीथ द इंसाइजल एज। देखिए मैंने पहले डिस्कस किया था क्योंकि हमारे पास जो लेबियल एंड लिंगुअल एस्पेक्ट है वहां पर जो सर्वाइकल लाइन होती है वो कर्व्ड होती है टुवर्ड द एपेक्स, while on the proximal means के distal and mesial aspect पे अगर हम देखें तो cervical line जो होगी वो curved होगी toward the incisal in the anterior teeth only. In the posterior teeth the dynamics are different. Incisal outline, the incisal edge is thick and from this aspect has a outline which slopes from the labial to lingual like the maxillary incisors. इंसाइजल आउटलाइन ये हमारे पास थिक होता है क्योंकि वहाँ पर कस्प होता है एंड इसकी वजह से लिंगुअल साइड पर भी और फ्रॉम द लेबियल टू द लिंगुअल यहाँ वहाँ पर स्लोप्स होते हैं, सेम लाइक द इंटीरियर अदर इंटीरियर टीथ। डिस्टल एस्पेक्ट, द डिस्टल सरफेस इज सिमिलर टू द मीजियल सरफेस विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। 2 एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? The distal surface is generally smaller with resultant shorter labial and lingual margin. Distal surface smaller है and इसका जो labial and lingual margins है वो भी shorter है क्योंकि वहाँ पर surface area हमारे पास reduce हो जाता है इसलिए। The cervical margin exhibits less curvature incisally than it does on the mesial surface. और जो कर्वेचर होती है उसकी डेप्थ कम होती है इट्स कंपेयर टू द मीजियल सरफेस। द लिंगुअल आउटलाइन ऑफ द डिस्टल मार्जिनल रिज इज लाइक टू बी मोर इरेगुलर देन द आउटलाइन ऑफ द मीजियल मार्जिनल रिज। ये जो लिंगुअल आउटलाइन है, लिंगुअल डिस्टल सरफेस का जो लिंगुअल आउटलाइन है ये मोर इरेगुलर है क्योंकि यहाँ पर ये सर्वाइकल थर्ड में कन्वेक्स होता है, फिर लिटिल बिट कनकेविटी, फिर कनकेविटी, फिर कन्वेक्सिटी आ जाती है लिटिल बिट स्लाइटली, सो इसलिए हमारे पास इरेगुलर होते हैं। द कॉन्टेक्ट एरिया इज मोर सर्कुलर देन द मीजियल एंड इज लोकेटेड एट द मोर सर्वाइकल लेवल विच इज इन द मिडिल थर्ड। कॉन्टेक्ट एरिया क्योंकि हमने कहा था कि ये रिड्यूस होगा टाइम के साथ साथ, तो ये कॉन्टेक्ट एरिया
मोर सर्वाइकली मीन्स के मिडिल थर्ड तक आ चुका होता है, क्योंकि वहाँ पर जो मीजल सरफेस पे था, एस्पेक्ट पे था, तो वहाँ पर ये था अबाउट एट द जंक्शन ऑफ इंसाइजल एंड मिडिल थर्ड, और यहाँ पर ये डायरेक्टली मिडिल थर्ड तक रिड्यूस हो गया है, नीचे की तरफ आप यू कैन से सर्वाइकल लेवल तक आ गया है. इंसाइजल एस्पेक्ट. फ्रॉम द इंसाइजल the maxillary canine is generally convex in both labial and lingual outline. From this aspect, the canine crown has a asymmetrical diamond shaped outline. अगर आप उसको देख ले तो बिल्कुल asymmetrical diamond shaped outline है. asymmetric इसलिए कि एक साइड पे यहाँ पर कन्विक्सिटी है, दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो इस एरो के साथ यहाँ पर लिटिल बिट कनकेविटी है, एंड यहाँ पर एक प्रॉपर कन्विक्सिटी बनी हुई है, यहाँ पर स्लाइटली कनकेविटी बनी है, इसलिए यहाँ पर एक डायमंड शेप ही शो कर रहा है. द मीजल हाफ इज थिकर labiolingually and more convex, while the distal portion is thinner and exhibit a slight concavity in its labial and or lingual outline, as I discussed with the arrows. अगर आप इस साइड पे देख ले तो यहाँ पर लिटिल बिट कनकेविटी है एंड यहाँ पर कन्वेक्सिटी है, तो इसलिए ये हमारे पास एक डायमंड शेप के एंड दूसरा इरेगुलर शेप में बना हुआ है. रूट. द रूट इज सिंगल एंड नॉर्मली द लॉन्गेस्ट रूट ऑफ एनी टूथ इन द माउथ. From all aspects, the root tapers gradually to a sharp or slightly blunted apex. The root is generally wider labiolingually than mesodistally. Simple words, single rooted है, longest है of any other teeth. This is taper and with slightly blunted apex, and the root is generally wider labiolingually than mesodistally. Variations and anomalies. Crown form does not vary widely, although the sharpness of the cusp tip has considerably range. क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएशंस आती है वो कस्प टिप में ही आ सकती है, नंबर 1. नंबर 2, स्लोप्स में वेरिएशंस आ सकती है, अदरवाइज इसमें इतनी वाइडली वेरिएशंस नहीं होती. On rare occasion, the lingual surface may exhibit a tubercle which is located near the most incisal level of the cingulum. Sometimes a tubercle in the cervical third on the lingual surface present होता है, otherwise मगर वो भी बड़ी rare condition में commonly present नहीं होती. All the contents are taken from this book. Thank you dear viewers and students. That was a session about permanent maxillary canines. Thank you so much.